Hey everyone, my name is Sanaya Sethia and welcome back to another episode of the Femme Frontier. Today I'm here with Mrs. Ketki Chavan. Hello everyone, my name is Ketki Savan. I'm the business owner of event management company. My company name is Eventures Management. Basically, my education is not related with my company. I have done masters in commerce. After that, I have done diploma in taxation and accountancy, and government diploma in corporation and accountancy. Wow, those are some accomplishments and it's an honor to have you here today. So my first question to you would be, you've built a 15-year long career and are the founder of Adventures Management. So at the beginning of your journey, did you imagine yourself as a business owner or was it an identity you grew into over time? Actually, the best word to say as a business owner for me is I am an accidental business owner because for my commerce exams, master's exams, I took break from my job, and after that I searched for something different career options, समथिंग क्रिएटिव, कुछ अच्छा ऐसे करने को मिले जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिले और काम करने में मजा भी आया ऐसे. तो आई searched many options, and after that we slowly started done our first event, after that second, and from first event I have done anchoring also. So I was not that confident at first event, but slowly ease. So out of all the industries, why was it event management specifically? बिकॉज एक वो रहता है ना कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, उसकी वजह से मैंने कुछ पहले डिजाइन्स बनाए थे जो करने थे, जो पॉसिबल हो सके या नहीं ऐसे कुछ देखना था. तो फर्स्टली मतलब हुआ क्या कि मैंने देखे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस देखे, उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, ये चीज में क्रिएटिविटी का यूज भी अच्छा हो सकता है और क्लाइंट को भी हम लोग मतलब क्लाइंट का भी सेटिस्फेक्शन हो तो वो हमारी क्रिएटिविटी का रिवॉर्ड मिल सकता है हमें. सो आई चूज दैट ऑप्शन. Wonderful. So my next question is, after working across so many events and clients, what do you genuinely believe is your strength and as a founder basically, and what makes clients trust you with moments that matter so much to them? Actually, the basic thing is our price point. We work on a very genuine, I don't say lower price point, genuine price point. हर एक चीज की जो कीमत रहती है तो कभी मार्केट में उससे ज्यादा भी मिलता है, उससे कम में भी मिलता है, बट इट इज अ जेन्युइन. बिकॉज क्या होता है कि हमारे यहाँ ट्रस्टवर्दी लोग मिलना हमारे बिजनेस में इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना उनका मतलब हमारे और एंड बेसिकली कि हम लोग हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए उनके अवेलेबल रहते हैं. सो दैट इज द मेन hands-on experience. So was that confidence always there or did it take you years to grow into? It took me approximately 5 years to build that confidence in me, because पहले क्या होता था, जब भी क्लाइंट को फेस करना है तो आज अभी क्या नया आएगा मेरे सामने और मुझे क्या फेस करना है, ये रहता था. एंड बेसिकली हमारा जो बिजनेस है, क्लाइंट को हाँ बोलना हर एक चीज के लिए इज वेरी इजी, बट प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है. सो ये सोच के उनको बोलना एंड कन्विंस देम कि ये यही पॉसिबल हो सकता है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट जैसे मैंने कहा कि 5 years, बिकॉज मैंने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, आफ्टर 3 years मेरी डॉटर हुई तो उसके इसमें थोड़ा मतलब आई टुक 2 years ब्रेक, एंड आफ्टर दैट माय गॉड आई केम एज अ लाइक वेरी कॉन्फिडेंट बिजनेस ओनर. उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया तो थोड़ा मुझे मार्केट स्टडी भी करना पड़ा. तब तक मेरे हस्बैंड देख रहे थे मेरा बिजनेस, तो उसके बाद मैंने थोड़ा मार्केट स्टडी करके एकदम कॉन्फिडेंटली मैं उतरी. तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. So, in your early years, what felt harder? Actually learning how the industry works or being taken seriously when you walked into the room or the sites? Actually,
the hard thing for me was finding genuine vendors. जेन्युइन वेंडर्स मीन्स कि लोग बहुत ऐसे थे कि जो बोलते थे हाँ ये हमारे पास अवेलेबल है, ये लेके जाओ, ये है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम लोग वहां पर जाते थे तो चीजें अलग ही होती थी. तो लिटरली वी वेंट टू इचल करंजी फॉर गुड वेंडर्स कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स हमें दे, क्योंकि हम जो है वी आर बेसिकली इनटू प्रोडक्शन. हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं और बहुत सारी ऐसी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है जो हमसे हमारी सर्विसेज लेती है और आगे क्लाइंट को बेचते हैं. ऐसे भी होता है एंड वी डू हैव डायरेक्ट क्लाइंट्स आल्सो. ओके. तो ये होना कि बाबा जो कुछ भी हमारे पास है तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस लो होना चाहिए, ये सब देख के हमें लेना पड़ता था. तो इसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी. हम लोग मतलब बहुत राजस्थान से कुछ चीजें, मतलब जो पारना वगैरह रहता है, ये सब मंगाना है, वहाँ के वेंडर्स के साथ डील करना है. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट अ टाइम, बट अभी तो मतलब वो बन गया है हमारा, एस्टैब्लिश हो गया. अच्छा. Another thing is events are very emotionally intense. Yeah. So there is family expectations, stress, last minute disasters and chaos. So was there ever a phase जहाँ पे it became mentally overwhelming for you and you felt like I need to take a break या फिर will I be able to go ahead with this? And how did you deal with it if this happened to you? हाँ, ऐसे तो होता है, हमेशा होता है कुछ पॉइंट पे, लेकिन my family is मतलब touchwood, it's very supportive for me, towards us, both of us. मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने मतलब जैसे ही पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो पहले मेरे साथ आते थे मीटिंग्स के लिए एंड ऑल. और मेरी जो मदर इन लॉ है वो पूरा घर का देखती थी, तो मुझे घर का कुछ भी नहीं देखना पड़ता था वो टाइम पे जब भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था. सो इट वॉज अ वेरी मतलब हेल्पफुल था तभी. अभी तो चलो कि मतलब सब सेटल हो चुके हैं अपने अपने स्पेस में, तो अभी ये नहीं, लेकिन वो टाइम पे उनका वो जो प्यार था मेरी तरफ, दैट वाज वेरी अप्रिशिएटिंग. मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी वो. और दूसरी बात, मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने 6 months के बाद जब ज्वाइन किया मुझे, सो इट वाज मतलब मेरे लिए बहुत मतलब क्या बोल सकते कि बहुत कामिंग था वो, क्योंकि एट अ पॉइंट ऐसे हो गया था कि मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी चीजें. बहुत सारे इवेंट्स आ रहे थे, क्लाइंट को मीटिंग के लिए जाऊं या फिर ऑन साइट जाऊं ये देखने के लिए, तो फिर हम लोगों ने ड्यूटीज डिवाइड कर ली. तो उसके बाद ये सब हो गया. और मैं मेंशन करना चाहूंगी मेरी बेटी का, मैं आफ्टर हैविंग अ बेबी, वो जब 2 साल की थी मैं उसको इवेंट पे लेके जाती थी. वो टाइम टू टाइम अपना खाना टिफिन वहां पे लेके जाती थी, वो वहीं पर खाती थी एंड ऑल. तो ये सब मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग है कि उसका ये रिस्पॉन्स. अभी तो मैं तो ऐसे बोलना चाहूंगी कि वो भी हमसे मैनेजमेंट सीखे. तो ये सब कैसे चलता है एंड ऑल, तो उसकी वजह से भी बहुत सपोर्ट मिला. तो बस ऐसे मतलब ये होता गया ऐसे. So family support was a big backbone for you and your success in the career. So if you compare the woman you were when you started young and the woman you're today, what is the biggest internal change in confidence or your boundaries or even your self-trust and decision making? Yes, I must say I'm a very confident woman now rather than earlier. But अभी क्या है कि अभी I need something like I need motivation to go forward. पहले ऐसे नहीं था. पहले था कि नहीं हमें करना ही है. अभी क्या है कि हाँ कुछ आ गया, क्लाइंट आ गए कुछ अच्छी रिक्वायरमेंट लेके, तो मैं करती हूँ. अदरवाइज मतलब थोड़ा जो चल रहा है उसी में मैं फिक्स हो गई हूँ, ऐसे हो गया. तो अगर कोई क्लाइंट नया कुछ लेके आता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये मोटिवेशन मिल गया मुझे कुछ अच्छा करने के लिए ऐसे. लेकिन पहले का और आज का अगर देखा जाए तो अभी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. और क्या बोल सकते हैं कि कोई ये नहीं है, कोई बैरियर नहीं है अभी. कुछ भी अगर अचीव करना है, अगर कोई भी नया चैलेंज किसी भी तरह का लेके आ गए, तो आई एम रेडी टू फेस इट, ready to get that challenge. Right. Do you feel more grounded now? Yeah, right, yeah. Okay.
So coming to Mahol, your new venture, Yeah. what brought you into that space along with Eventures? एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा, पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते थे, बट पहले से ही हमें आर्ट में थोड़ा इंटरेस्ट था। मतलब वो भी अच्छा गाते थे। ही इज अ प्रोफेशनल ढोलकी प्लेयर बेसिकली। Oh, wow. तो पहले गाते भी थे, ढोलकी भी बजाते थे, बहुत सारे ऐसे शोज भी किए थे। लेकिन वो टाइम के जो शोज थे वो थोड़े ट्रेडिशनल टाइप में थे। तो अभी क्या हुआ, अभी कुछ अभी जैसे जैमिंग सेशंस वगैरह होते हैं, ये हम लोगों ने देखा एंड फिर सोचा कि यार ये हम लोग तो कर सकते हैं, दिस इज अवर प्लस पॉइंट कि ये तो कर सकते हैं। और बेसिकली अभी क्या है, इवेंट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है ये एक पॉइंट पे भी क्या बोल सकते हैं, ऑटो पायलट मोड पे चला गया है कि जो डिजाइन आते हैं, अगर नया डिजाइन है तो हाँ वहां पर काम करना पड़ता है, अदरवाइज इट इज गोइंग तो एस्टैब्लिश था, ग्रोथ करना था। तो फिर ये नए इसमें हम लोग चले गए। और दूसरी बात, एज एन आर्टिस्ट यू नो इट बेटर कि एज एन आर्टिस्ट तुम्हें अगर किसी के सामने परफॉर्म करने मिले, सो ये जो अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन है ना, इट ब्लोज योर माइंड। तो ये एक था, पहले से था जो मुझे, मतलब मैं मेरे हस्बैंड दोनों भी एंकरिंग करते हैं, तो एंकरिंग में मिलता रहा। लेकिन हम दोनों भी गाना प्रोफेशनली सीखते हैं, क्लासिकल म्यूजिक ऑल्सो। तो ये सब करना वॉज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर अस। सो हमने सोचा चलो कर लेते हैं, एक दो शोज तो कर लेते हैं। लेकिन अभी तो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस इट्स गोइंग रियली वेरी वेल। So for you, it was that you already had a business platform through Adventures, and you converted your hobby of singing into another business venture alongside. Right. That is very inspirational as a fellow person who's into performing arts and all, to kind of have that platform and create a platform like that. So today, what are the real skills that run your business? Is it price judgment, or the handling the difficult clients, or negotiating with vendors, managing teams and timelines? Creative direction, what is it? अभी तो प्राइस का इतना इशू नहीं है, क्योंकि प्राइस पॉइंट तो हमने क्रैक कर लिया है। क्योंकि हमारे जितना, जैसे मैंने बोला, जेन्युइन प्राइस मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन जेन्युइन, जैसे मैंने बोला, अफोर्डेबल विथ अ क्वालिटी सर्विस एंड गुड्स, ऐसे तो वो शायद ही बहुत कम लोगों के पास है। ऐसे नहीं बोल सकते किसी के पास नहीं है, कम लोगों के पास है ऐसे। तो अभी का जो डिफिकल्टी है आफ्टर कोविड, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है हमारे बिजनेस में वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले कैसे था कि पहले डायरेक्टली क्लाइंट हमारे पास आते थे और हम लोग उनका जहां पर वेन्यू है वहां पर, तो अभी थोड़ा टाइप्स का कल्चर बढ़ रहा है। लेकिन इट इज गुड फॉर दैट वेन्यू, बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट पर्सन भी होते हैं जो वेन्यू का थोड़ा प्रॉब्लम करके जाते हैं, इसीलिए वो पैनल पे रखते हैं 4-5 लोग, फिर उन्हीं से करवा लो, ऐसे थोड़ा रहता है। तो उसके लिए हमें अभी थोड़ा और ज्यादा लोगों के साथ टाइप करना इज अ चैलेंज फॉर अस। बाकी तो इट्स गोइंग स्मूथ। And you mentioned that customers should choose service providers more wisely. What do most clients not understand about the effort or the planning and the responsibility behind professional event management? When I said कि इवेंट मैनेजमेंट का जो है वो जेन्युइनिटी पे डिपेंड है। बहुत सारा मैंने ऐसे इवेंट्स देखे हैं कि बोला है ऑर्किड लगाएंगे वहां पर, और एन वक्त पर मिला नहीं करके जरबेरा लगा देते हैं और फिर फोन स्विच ऑफ करके घर पे बैठ जाते हैं ऐसे। सो आई एम नॉट टॉकिंग निगेटिव अबाउट इट, बट कैसे है कि क्लाइंट को ये कन्विंस आप कर सकते हो एज अ इवेंट पर्सन, इवेंट मैनेजमेंट पर्सन। आप क्लाइंट को कन्विंस करो कि नहीं, अभी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा, तो उसके बदले हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मतलब क्लाइंट को अंधेरे में रख के कुछ करना है, सो इट इज चीटिंग टुवर्ड्स योर जॉब। तो ये नहीं करना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जेन्युइन आपको चूज करना है। इवेंट मैनेजमेंट पर्सन जो है वो कौन जेन्युइनली बात कर रहा है आपसे और कौन बस आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। तो ये आपको समझ के तो ऑनेस्टी चाहिए कि अवेलेबल यही है और इससे ही काम करवाना है। We can't, falsely tell you something and then give you a result that you won't have. And my last question is कि if a young woman listening feels like she isn't confident enough
yet to start something new of her own. What part of your journey would you want her to truly understand and embody so that she gains the confidence to start her own venture? Yeah, I really want to tell every woman out there कि कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही, लेकिन अपने आप पे एक भरोसा चाहिए, और बेसिकली जैसे कि मैं हर एक मेरे क्वेश्चन में कि जेन्युइनिटी चाहिए. तुम जो बिजनेस कर रहे हो, इट इज योर बेबी, सो ट्रीट इट लाइक योर बेबी, कि मेरा बेबी है तो उसी की तरह उसे ट्रीट करना है. और हाँ, जो क्लाइंट है उनको फॉल्स एक्सपेक्टेशन में नहीं रखना है, मतलब उनको फॉल्स कुछ ऐसे चीजें बतानी नहीं है. तो ये है. और दूसरी चीज है कि अगर कोई भी बिजनेस करे, ऐसा नहीं कि इवेंट मैनेजमेंट में, कोई भी बिजनेस करे तो उसमें एक तो मेहनत तो आपको करनी ही है, लेकिन मेहनत के साथ में ही आपको एक ये करना है कि मुझसे कुछ भी ऐसा ना हो कि एक इवेंट या कुछ भी चीज क्लाइंट की स्पॉइल हो जाए. ऐसा मुझसे थोड़ी बहुत चीजें कम हुई तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं करना है, और उनका वो चीज बर्बाद नहीं करना है. ना बोल दो सीधा, लेकिन वो बर्बाद मत. एंड एक और पॉइंट रहेगा कि you got into the successful part of your business after motherhood. So what would you say to those mothers who want to start something but don't have the confidence कि अभी I have a kid, तो ये टाइम कहाँ से लाओ या फिर ये करूँ कैसे? So उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? एडवाइस यही रहेगी, फर्स्टली यू नीड, मतलब आपको गिल्ट नहीं लेना है किसी भी चीज का. कि अभी अगर कोई आ रहा है तो उनके लिए मेरा इतना ही कहना है कि मार्केट अच्छे से स्टडी करो, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं. क्योंकि अभी प्रोडक्शन में, जैसे कि मैंने बोला कि वी आर बेसिकली इनटू प्रोडक्शन इन दिस बिजनेस, लेकिन प्रोडक्शन में उतरना इज वेरी क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव अभी के लिए. तो पहले तो सर्विस में उतरो, उसके बाद इसमें आ सकते हो. सो ये मार्केट स्टडी करके कैसे चल रहा है ये थोड़ा देखना पड़ेगा. राइट. This was a very insightful conversation and I learned a lot of things, a lot of advice about how to go for it, and I also got a very refreshing perspective. So thank you so much for being here today. Thank you Sanaya, and all the very best for this podcast series. Thank you so much.